Good day to all of you. Today's lecture is on regular expressions. Regular expressions are used to represent the languages in a compact manner through symbols. Finite automata are used to accept the regular languages. Those regular languages can be represented through expressions using some symbols. Those expressions are called regular expressions. Now, first, what is a regular set? Formally, a regular set is defined as an empty set is a regular set. A set containing epsilon symbol is called regular set. A set containing a single element A for every element that belongs to set A is called a regular set. If X and Y are regular sets, then X union Y or X plus Y is also a regular set which contains elements which are either in X or Y or both. XY, that is X concatenated with Y, defined as element consisting of strings, each of consisting of a prefix which is an element of X and a suffix which is an element of Y, is also a regular set. X star, which is called clean closure, is defined as elements each of which is a string consisting of concatenation of 0 or more elements of X are regular sets over A. So X ka star contains either null, one element, 2, 3 and any number of combination of element of set A. It is also a regular set. Nothing else is a regular set. इसके अलावा और कोई रेगुलर सेट नहीं है, यानी कि रेगुलर सेट्स के ऊपर हम तीन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं: यूनियन, concatenation and clean closure. This clean closure is a combination of concatenation and union that we will see in the later slides. Now, what is the formal definition of regular expressions? A regular expression can be recursively defined as epsilon is a regular expression indicating the language containing an empty string. Language of epsilon is a set containing epsilon. Phi is a regular expression denoting an empty language, that is, the language of phi is a null set. A is a regular expression where language of this is set containing A, or the regular, it is equivalent, it is corresponding to the set containing a single element. So A is also a regular expression. Further, if X and Y are regular expressions denoting the language Lx and Ly respectively, then X union Y is a regular expression corresponding to the language Lx union Ly, where Lx plus Y, that is union of X, language of
union of x plus y is equal to language of x union language of y. X concatenated y is a regular expression corresponding to the language Lx and Ly, where L language of x dot y is equal to language of x concatenated with language of y. R star, that is a clean closure of R, is a regular expression corresponding to the language L language of R star, where language of R star is equal to language of R ka whole star. If we apply any of the above rules any number of times, the obtained expressions are a regular expression. Nothing else is a regular expression. So, as we can apply 3 operations on regular sets, so the expressions obtaining after applying these three operations in any order in any number of times, whatever is obtained is called a regular expression. Now, what are the basic operations that can be performed on regular expressions? As we already know, first union, then we have concatenation, then we have clean closure. This is an optional one, positive closure. Now, it is not a basic operation, but it is counted as an operation. If R1 and R2 are regular expression, then R1 union R2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. These three symbols indicate union operation. Different books use different symbols to represent the union. If R1 and R2 are regular expressions, then R1 union R2 is also a regular expression. Concatenation. If R1 and R2 are regular expressions, then R1 concatenated R2 written as R1 dot R2. You can write dot or no need to write dot, is also a regular expression. So language of R1 concatenated R2 is equal to language of R1 concatenated with language of R2. If I write language of R2 R1, it is different from language of R1 concatenated with R2. Then it will become language of R2 concatenated with R1. It will, if we have suppose R1 is equal to A and R2 equal to B, then it becomes AB, and in case of language of R2 R1 it becomes BA. Clean closure. If R1 is a regular expression, then R1 ka star, that is clean closure of R1, is also a regular expression. Now you see how the clean closure is, we can express the clean closure. Language of R1 star is equal to epsilon union language of R1 union language of R1 concatenated with R1 union language of R1 concatenated 3 times union language of R1 concatenated 4 times, then 5 times, then 6 times, then up to infinity. It means the clean closure contains epsilon, then single element, then single element concatenated 2 times, single element concatenated 3 times, and so on. Positive closure. If R1 is a regular expression, then R1 plus, it is star, it is denoted by star clean closure, plus is indicated positive closure. Called the positive closure of R1 is also a regular expression. Language of R1 positive closure is equal to language of R1 plus union language of R1 R1, that is R1 concatenated with R1 2 times, union language of R1 concatenated 3 times, union language of R1 concatenated 4 times, 5 times, 6 times, and so on. So what is the difference between clean closure and positive closure? In clean closure, null is there, but in positive closure, null is not there.
Now, examples of regular expressions and corresponding regular sets. So if we have 0 plus 1 का star, it is a regular expression. 0 plus 1 का star, 0 plus 1 0 का star, sorry, 0 plus 1 0 का star. So what is the language of this? What is the corresponding regular set for this regular expression? So 0, because it is a union, then 0 का star may have epsilon, so it becomes 1. Then next one is 1 0, then 0 is repeated 2 times, 1 0 0, 0 is repeated 3 times, 1 triple 0, 0 is repeated 4 times, and so on. No more use of this 0, but this is repeated again and again, because these two are in a union. Now this is in concatenation. 0 का star, 1 0 का star. So first we have 1, then remove, it is null, it is null. Now it is null, it is 1 0, so it is 0 1. Next it is 1, it is 1, so it is, sorry, it is null, so it becomes 1 0. Next it is 1, it is 1, so it is 0 1 0. First one is repeated 2 times, second one 0 is repeated 1 time, so 0 0 1 0. Then second 0 is repeated 2 times, first 0 is repeated 1 time, so 0 1 double 0, and so on. You can expand this one. So what is the regular set corresponding to this regular expression? L equal to, first one is 1 के बाद आपने अपसाइलन के साथ अपसाइलन कॉन्केटनेट किया, अपसाइलन के साथ ज़ीरो के साथ अपसाइलन किया, ज़ीरो, अपसाइलन के साथ 1 किया, 1, ज़ीरो के साथ 1 किया, 1. अगर आप इसको ऐसे 0 1 पहले आ जाएगा, फिर 0 अपसाइलन 0 रह जाएगा, फिर अपसाइलन 1 1 आ जाएगा, फिर अपसाइलन के साथ अपसाइलन, इसको उल्टा लिखा जाएगा. ऐसे आप इसको सीक्वेंस करके सीधा ठीक कर सकते हैं. A प्लस बी का स्टार, दिस इज इंपॉर्टेंट टू सी. A प्लस बी का स्टार, A यूनियन B के का स्टार क्या होगा? नल, क्योंकि सबके ऊपर स्टार लग गया तो नल तो आएगा ही आएगा. फिर एक 1 टाइम्स A, 1 टाइम B, 1 टाइम A, 1 टाइम B, देन A रिपीटेड 2 टाइम्स, दैट इज डबल A, देन B रिपीटेड 2 टाइम्स, डबल B, then A is concatenated with B, AB, then B is concatenated with A, B. That A plus B ka star indicates any string including null that can be constructed using A and B. A plus B star means any string that is constructed using A and B including null. Next, A plus B का स्टार डबल ए बी. सो ये जो ऊपर आपने कंस्ट्रक्ट किया, इन सब के पीछे A डबल बी लगा दीजिए, और नल के साथ भी, सबके साथ. तो क्या बन जाएगा? सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा? A डबल बी, देन ए डबल बी, बी ए डबल बी, डबल ए डबल बी, ए डबल बी, एंड सो ऑन. So it indicates all the strings that end with A डबल बी. डबल 1 का स्टार क्या होगा? अपसाइलन तो आएगा ही आएगा. देन मिनिमम स्ट्रिंग इज डबल 1, देन डबल 1 2 टाइम्स, डबल 1 3 टाइम्स, एंड सो ऑन. ए का स्टार, डबल बी का स्टार, बी. सो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा? पहले बी, ये भी नल, ये भी नल, तो सिंगल बी. फिर डबल बी के स्टार को नल कर लो तो डबल ए बी. फिर डबल ए के स्टार को नल कर लो तो डबल बी बी आ जाएगा. फिर दोनों का एक एक ले लो, डबल ए डबल बी बी, फिर डबल ए डबल बी बी, डबल ए बी, एंड सो ऑन. ऐसे आप इसको एक्सटेंड करते चलेंगे. अगर इन सब का कॉम्बिनेशन होना है तो ये इवन
लेंथ का कोई भी ए और बी का स्ट्रिंग जो आप सोच सकते हो इवन लेंथ का, ठीक है जी, एक्सक्लूडिंग इवन लेंथ का कोई भी जो आप सोचो। तो सबसे पहले एक एक ले लीजिए। डबल ए नल भी इंक्लूड होगा, नल नहीं किया इसने, नल इज आल्सो देयर क्योंकि सबका स्टार है। सो डबल ए बी बी, देन इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन डबल ए बी, डबल ए डबल बी डबल ए एंड सो so these are the examples of regular expressions and corresponding regular set. Now consider a regular expression representing the language over this alphabet. Describe the regular sets represented by the following regular expressions. So हमारे पास ये कुछ regular expressions दिए हुए हैं, इनके correspondingly हमने इनका regular set बताना है। So first का हमारे पास A, second का हमारे पास A, बी क्योंकि ए यूनियन बी है, तीसरे का ए बी, फोर्थ का ए बी ए कॉमा ए बी बी। ठीक होगी जी बात। ए का स्टार आपको पता है, दैट इज नल ए के, देन 2a, then 3a's and so ए बी का स्टार, ए फिक्स है, बी रिपीट होएगा, सो ए देन ए बी देन ए बी बी देन ए ट्रिपल बी एंड सो ए बी का स्टार, सो व्हाट इट इज नल ए बी ए बी 2 times, then ए बी 3 times, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एंड so this is how we can represent regular sets by used by these regular expressions. So this is how these are the answers of the previous one. You can see the first one is A, next one is A B, then A comma B, next is A B A double B, null A single A triple A, then ये ए बी का स्टार था, सॉरी ए, हाँ ए बी का स्टार था, तो ए भी आना चाहिए था, इसमें ए मिसिंग हो गया है, ए आना चाहिए। ठीक हो गई जी बात। नेक्स्ट है हमारा ए बी का स्टार, ये ए बी का स्टार है, ये ए बी का होल स्टार है, ए बी का होल स्टार नल ए बी एंड सो। नेक्स्ट एग्जांपल, consider the following two regular expressions r1 equal to a, r2 equal to b, c. So we have to determine r1 concatenation r2, r1 union r2 and r1 का स्टार एंड r1 का प्लस। सो अगर मैं concatenation की बात करूं तो वो बन जाएगा ए बी सी, ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा r1 यूनियन r2 क्या बनेगा, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी। थर्ड क्या बनेगा हमारा, r1 का स्टार, सो इट विल बिकम ए का स्टार, r1 का प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ए का प्लस या ए का स्टार वाले सेम थे।
ठीक है जी। अगर आप सोल्यूशन देखें तो R1 R2 क्या बन गया, ABC बन गया। R1 प्लस R2 क्या बन गया, A प्लस BC बन गया। R1 का स्टार क्या बन गया, A का स्टार विच इज एप्सिलॉन, A, डबल A, ट्रिपल A, 4A, 5A एंड सो ऑन। एंड R1 का प्लस क्या बन गया, A का प्लस दैट इज A, डबल A, ट्रिपल A, 4A एंड so now we have to learn how to write regular expressions. So write a regular expression for the language all strings that end with double A. All strings, all strings. So फर्स्ट all, जब all स्ट्रिंग आ जाए तो आपने, क्योंकि ए और बी के ऊपर है, ए प्लस बी का स्टार डबल ए, ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड विद डबल ए। तो ये जो भी स्ट्रिंग डबल ए से बन सकते हैं वो जो ए और बी से बन सकते हैं, और आखिर में इनके डबल ए लगा दो। नाउ सीधा आंसर ए प्लस बी का स्टार डबल। नेक्स्ट, all the strings that begin with double A. Now that begin with double A, double A प्लस बी का स्टार। सो डबल ए से हमने स्टार्ट कर दिया, एंड में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो दैट वो फिर क्या बन जाएगा, सारे स्ट्रिंग जो डबल ए से शुरू हो रहे हैं। सीधा आंसर डबल ए प्लस बी का स्टार। नाउ we have to write regular expression corresponding to the following regular sets. In regular set के correspondingly हमने regular expression लिखनी है। सबसे पहला तो बड़ा सिंपल है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। आप इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके और भी लिख सकते हैं। ए कॉमन निकाल लीजिए, बी प्लस सी प्लस डी, ये भी इसका एक पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट अगर आप देखें, ये आपने ये लिखना है, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी बी प्लस बी सी। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी। सो ए बी का स्टार, बी का होल स्टार या बी का स्टार, एक ही बात है। पहली बार में क्या हो गया, बी नल हो गया, एक ए आ गया। अगली बार एक बी आया तो ए बी हो गया, दो बार बी आया तो ए डबल बी हो गया, तीन बार बी आया तो ए ट्रिपल बी हो गया, चार बार बी आया तो ए क्वाड्रपल बी हो गया, एंड सो नाउ दिस इज ए बी, ए डबल बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी थ्री टाइम्स, ए बी फोर टाइम्स। सो इट इज सिंपल, ए बी का होल स्टार। नेक्स्ट, ए बी सी डी, ए बी सी बी सी डी, सी बी सी बी सी डी। सो ये ध्यान देना है अब इसके ऊपर, ए बी सी डी का होल स्टार, सॉरी सी बी का, नॉट सी डी का, सी बी का होल स्टार एंड देन सी डी। सो ये हमारा आंसर है। पहले का ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए सी बी 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 सी, ए बी का स्टार, ए बी का स्टार, ए बी सी बी का स्टार, सी डी। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो, ए बी का प्लस भी लिख सकते हो, और ए बी का प्लस, you can write this thing also, but this is a same। और देख लेते हैं, राइट रेगुलर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कुछ और के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, contains at least 3 consecutive ones। अब एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर 3 consecutive ones हो। सो देख लीजिए, चलिए इधर लिख लेता हूँ, 0 + 1 का स्टार
एक 1 2 1 3 1 देन 0 प्लस 1 का अब 3 1 आ गए मेरे। 3 1 आगे भी आ सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, बीच में भी के बीच में आ गए तो यहाँ इससे भी कुछ स्ट्रिंग लूंगा, यहाँ से भी कुछ लूंगा। आगे लेना है तो इसको नल कर दूंगा, पीछे लेना है 3 1 को तो इसको नल कर दूंगा, ये वाला नल हो जाएगा, नहीं तो ये नल हो जाएगा। अगर बीच में नहीं तो दोनों में से कोई कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। दिस इज हाउ 0 प्लस 1 का स्टार, 1 1 0 प्लस 1 का स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटेन्स सब स्ट्रिंग 1 1 0, सब स्ट्रिंग है 1 1 0, तो सब स्ट्रिंग आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सो अगेन 0 प्लस 1 का स्टार 1 1 0 0 प्लस 1 का स्टार। सो देख लेते हैं आंसर। दिस इज 0 प्लस 1 का स्टार, डबल 1 0 0 प्लस 1 का स्टार। नाउ कंटेन्स द सब स्ट्रिंग दिस, सो इट इज ऑलमोस्ट द सेम। ऐसा ही है, बस आपने 1 1 0 की जगह पे इसको लिख देना है, अदरवाइज इट इज सेम। सब इसका सेम। ना ये क्वेश्चन कुछ आपने करने हैं, इनके लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने हैं। आप इसकी स्नैपशॉट ले लीजिए या इनको नोट कर लीजिए। ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर ए बी दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ एज। Second question, all strings over a B that contain exactly 2 occurrences of double B, triple B counts as 2 occurrences. All strings over B that start with an A, all strings over AB that are even in length, all strings over AB that start and end with same letter. Same letter का मतलब है या तो वो दोनों डबल ए से शुरू होते हैं और ए पे एंड होते हैं, या बी से शुरू होते हैं और बी पे एंड होते हों। तो इसके लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज। जैसे सेट्स के अंदर आइडेंटिटीज हैं, ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए भी आइडेंटिटीज है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स हैं जो ट्रू हैं। सो मान लीजिए आर पी एल क्यू हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ये कहता है ये नीचे वाली आइडेंटिटीज होल्ड करती है। अगर हम फाई का स्टार करेंगे दैट इज इक्वल टू अपसाइलन। अगर हम अपसाइलन का स्टार करेंगे तो वो नल को कितनी बार भी कॉन्केटनेट करें वो नल ही रह जाएगा। आर को आर स्टार के साथ कॉन्केटनेट करें या आर स्टार को आर के साथ कॉन्केटनेट करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आर स्टार 2 बार लिखोगे विच इज इक्वल टू आर स्टार, क्योंकि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के साथ जोड़ेंगे तो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। आर के स्टार का होल स्टार कर दोगे विच इज इक्वल टू आर स्टार, आर स्टार कर दोगे दैट इज इक्वल टू आर स्टार आर। ये ऊपर वाली बात ही है, नहीं फिर दोबारा आ गई है। पी क्यू का स्टार पी करेंगे, पी क्यू का स्टार पी विच इज इक्वल टू पी क्यू पी का पी क्यू पी का स्टार। ये आप ऐसे कह लीजिए कि एसोसिएटिविटी है हमारी, पी को आप इधर बाहर निकालिए और अच्छा नहीं, ऐसा एसोसिएटिविटी नहीं है। पी क्यू का स्टार पी इज इक्वल टू पी क्यू पी का स्टार। ए प्लस बी का स्टार अगर आप है वो ए का स्टार बी का स्टार का होल स्टार के इक्वलेंट है। ए का स्टार प्लस बी के स्टार का होल स्टार वो भी इक्वल हैं। ए प्लस बी के स्टार का होल स्टार वो भी इक्वल हैं। ए स्टार बी ए स्टार का होल स्टार, ये पांचों हैं या ये चारों हैं, ये ए प्लस बी के स्टार के इक्वल हैं। आर के अंदर के साथ आप फाई को यूनियन करें या फाई के अंदर आर के साथ यूनियन करें, दोनों का आंसर आर आएगा। आर के साथ नल को कॉन्केटनेट करें या नल के साथ आर को करें, आंसर आर रहेगा। फाई के साथ एल को कॉन्केटनेट करें, एल को फाई के साथ करें, आंसर फाई आएगा। आर के साथ आर का यूनियन करें तो आंसर आर आएगा। अगर एम और लैंग्वेज एम एंड एन है, उन
का आपने यूनियन कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ एम प्लस लैंग्वेज ऑफ एन। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, ये हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो गई। एम प्लस एन इंटू एल इज इक्वल टू एम एल प्लस एन एल, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अपसाइलन यूनियन आर आर का स्टार इज इक्वल टू अपसाइलन आर स्टार आर इज इक्वल टू आर स्टार। सो ये आइडेंटिटीज किस लिए हम यूज कर सकते हैं? ये आइडेंटिटीज हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए, उनके साइज को कम करने के लिए या उनको सिंप्लीफाई करने के लिए इन आइडेंटिटीज का यूज किया जा सकता है। अदरवाइज जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो बड़े कबरसम हो जाते हैं, क्रिप्टिक हो जाते हैं, उनको उनकी लैंग्वेज जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन आइडेंटिटी से हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम। नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, या हम इक्वालिटी चेक करनी है तो वो इक्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। इक्वालिटी दो रेगुलर एक्सप्रेशन वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके ये प्रूव कर रहे हैं कि ए स्टार ए इंटू बी ए का स्टार ए का होल स्टार इज इक्वल टू ए प्लस ए बी का स्टार ए, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। सो ए स्टार ए बी ए का स्टार ए का होल स्टार, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया। अब हम अगर इसको इसमें रिडक्शन कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये इक्वल है। तो अब इसमें एसोसिएटिविटी का वाला रूल लगा लिया। एसोसिएटिविटी वाला क्या कहता है, देखिए आप, ए का स्टार, फिर इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने ए बी ए का स्टार ए का होल स्टार, यानी कि ये ए तो हमने ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट के अंदर और ये इसको इससे बाहर कर दिया। बी ए के स्टार के साथ जो ये वाली ए जुड़ रही थी इसको बाहर कर दिया। ठीक है जी, एसोसिएटिविटी, क्योंकि डॉट एक एसोसिएटिव ऑपरेशन है। चाहे बी ए स्टार पहले एवेल्यूएट कर लो फिर उसके साथ ए जोड़ दो, या पहले ए निकाल लो फिर उसके साथ बी ए स्टार जोड़ दो, वन एंड सेम थिंग ना। अब ये जब आपने एसोसिएटिविटी लगाया तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अब अगर इसको आप चेक करोगे तो हमने एक, ये हमारे पास रूल है, आर एस आर स्टार इज इक्वल टू आर एस का स्टार आर, ये दोनों इक्वल है। सो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा आर है, ये हमारा एस आर का स्टार है, एस आर का, ये देखिए ये पूरा स्टार है। ठीक है जी, ये इसको आप एस मान लीजिए, इसको आर का स्टार मान लीजिए। तो क्या बन गया, अब आर एस ए स्टार ए बी ए स्टार का होल स्टार, और ये ए इसके साथ लग गया। तो ये इस तरीके से हमारा ये थोड़ा सिंपलीफाई हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने एसोसिएटिविटी का रूल लगाया, इस ए को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ठीक होगी जी बात, और ए स्टार को ब्रैकेट से बाहर कर दिया। ठीक है जी, फिर ये हमारे पास बन गया। फिर हमने एक और एसोसिएटिविटी दोबारा लगाई, दोबारा एसोसिएटिव लगाई तो ए का स्टार ए बी ए स्टार का होल स्टार, और इस ए को ब्रैकेट से बाहर ले लिया। अब इसके ऊपर एक दूसरा रूल अप्लाई हुआ, आर का स्टार एस आर के स्टार का होल स्टार इज इक्वल टू आर प्लस एस का स्टार। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा आर का स्टार है, ये हमारा एस आर, ये पूरा इतना, ये इतना पूरा एस और आर बना दिया, क्योंकि ये ए स्टार आर स्टार है, ये ए स्टार भी आर स्टार हो गया, ए भी हमारा एस हो गया उसका होल स्टार, और ये ए हमने बाहर रख लिया। तो क्या बन गया, अब आर प्लस एस लेना है, आर हमारा ए है, एस हमारा ए बी है, सो ए प्लस ए बी का होल स्टार ए। तो
ये इक्विवेलेंट प्रूव हो गए। सो वी कैन सिंप्लीफाई। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसके कंपैरेटिवली इसको समझना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो we can simplify the regular expressions. We can prove the equivalence of regular expressions using algebraic identities. थैंक यू। आज के लिए इतना ही।